حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بقا نیوز سے قربانی اور پی ایس پی پاک سرزمین پارٹی سیکریٹریٹ آفس کے باہر ہم کھڑے ہیں اور اعلیٰ قیادت کے ساتھ جو ہے ان کی نگرانی میں قربانی ہو رہی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں قربانی کے اس موقع پر جو ہے ہمیں قوم کو جو ہے قوم سے کیا کہنا چاہیں گے اور بالخصوص کراچی والوں سے کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا جو اصل مقصد، تصور اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سنت ابراہیمیہ کا جس طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک فزیکل ایک وہ ہے کیا کہنا چاہیے کہ جس میں ہم نمونہ ہے جس کے اندر ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن اصل اس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ انسانوں کو اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنی چیزوں کی قربانی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس تعلیم کے بموجب ہم سب قربانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اصل مقصد تو یہی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کی قربانی دیں دوسرے لوگوں کے لیے، قوموں کے لیے، معاملات کے لیے، اور اللہ کے راستے، اللہ کو خوش کرنے کے طریقے کے اوپر کاربند رہیں۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا منظور کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے بموجب اس سے ان کی اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے ایک بچڑے کی قربانی کو ان کے لیے سنت بنا دیا رہتی دنیا تلک کے لیے۔ سر، قربانی کا وقت ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور اچھا پیغام، اچھا میسج دیا کہ ان جانوروں کے فزیکل یہ جو بھی ہم اس کے طفیل جو ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہرگز ہمارا جو ہے گوشت اور خون نہیں پہنچتا اللہ کو، صرف تقوی ہی پہنچتا ہے۔ اس موقع پر پاکستانی عوام سے، بالخصوص کراچی کی عوام سے کوئی شارٹ مگر جامع، یا پھر آپ جامع ہی جو ہے کوئی نصیحت کرنا چاہیں یا کوئی پیغام شیئر کرنا چاہیں، کیونکہ ہم ایسے دور سے جی رہے ہیں جس میں میرے خیال سے یہ موقع نہیں ہے کہ ہم دوسری طرف بات لے جائیں، لیکن پھر بھی جو ہے تھوڑا سا کچھ کہیں اس موقع پر۔ بڑی جو ہے نا گہما گہمی ہے، بڑی پریشانیاں ہیں کراچی والوں کے بالخصوص، تو کیا پیغام؟ میں تو کہوں گا کہ اللہ کا شکر ادا کریں جس حال میں بھی ہم ہیں، اور جیسے بھی ہیں اس کی مرضی ہے، اس کے راستے پہ چلیں گے، اس کی طرف رجوع کریں گے تو ہماری مشکلات اور تمام تکالیف دور ہو جائیں گی۔ اس سے بڑھ کر جو بات ہے، دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے، خاص طور پہ افغانستان میں روہنگیا مسلمانوں کی حالت دیکھیے، اس کے بعد سیریا کے اندر، عراق کے اندر،
मुख्तलिफ़ दुनिया के हिस्सों के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसको देखें, कंपेयर करें, तो हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत महफूज रखा हुआ है। लेकिन हमें सबसे पहले, वो कहते हैं चैरिटी बिगेंस फ्रॉम होम, तो हमें सबसे पहले अपने घर के मामलात के अच्छा करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वो हम नहीं दे रहे हैं। सर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर नहीं जा रहा, लेकिन पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा मगलूब होती जा रही है, इसकी वजह क्या है, क्या समझते हैं आप? अब सिर्फ पाकिस्तान बचा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के आपस के ही जो है हमारे मसाइल ठीक नहीं हो रहे, लेकिन उम्मत मुस्लिमा हर तरफ से घिर चुकी है, इसकी क्या बुनियादी वजह समझते हैं आप? इसकी वजह तो देखिए कि ये है कि हम अल्लाह के रास्ते को छोड़ चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह के रास्ते को पकड़ेंगे, अल्लाह का रास्ता होगा। तो आप देखें अमेरिका जैसी क़ुव्वत को निकलना पड़ा ना, अफ़गानिस्तान से निकलना पड़ा। मैं समझता हूँ कि हम अल्लाह के रास्ते में मुत्तहद होंगे और सीधे काम करेंगे और हक़ की तालीम देंगे, बुराई से रोकेंगे, नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे मसाइल भी पूरी तरीके से हल हो सकेंगे। और PSP इसकी वाज़ेह मिसाल है, जो नेकी का हुक्म और बुराई से रोकने में सबसे आगे है मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे। बहुत खूबसूरत बात की कि PSP जो है बढ़ चढ़ कर जो है जनाब अली इस जुमले पर आपने गौर किया हो शायद कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकने पर जो है गामज़न है। और PSP की आला क़यादत इस वक्त हमारे साथ मौजूद। हमारे अक़ब पे आप देख सकते हैं कि क़ुरबानी जो है ज़ोर व शोर से जारी है और मुस्तफ़ा कमाल अपनी आला क़यादत के साथ अपनी सिक्योरिटी की निगरानी में जो है यहाँ पर क़ुरबानी के फ़रीज़े को अंजाम दे रहे हैं। आइए मज़ीद बातें करते हैं और आपको बताते हैं। अब तो बात चल रही थी पार्टी की आला क़यादत से, और पिछला जो मैसेज आपको मिला कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का जो मैसेज मिला, जो कि PSP का मंशूर कहें या PSP इस पर गामज़न है, इस पर काम कर रही है। आइए इनसे जानते हैं कि क़ुरबानी के इस मौके पर जो है ये पैगाम क्या देंगे और पाकिस्तान से क्या शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी खैर मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इस मौके पर क्या कहेंगे आप? क़ुरबानी तो हो ही रही है और क़ुरबानी हम देते आ रहे हैं, लेकिन बात दूसरी तरफ नहीं ले जाते हैं। ईद उल अज़हा का मौका है, पैगाम कुछ दें, पाकिस्तान से कुछ शेयर करें, पाकिस्तान के अवाम को कुछ पैगाम दें, या क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अहलियान पाकिस्तान को बिलखुसूस और बिलूम पूरी मुस्लिम बरादरी को ईद मुबारक का पैगाम देता हूँ। देखिए, बात ये है कि हम बेसिकली तो हम सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करते हैं और हम चाहते हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये एक आज का जो दिन है, जो ईद का मौका है, ईद उल अज़हा का, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सुन्नत से सुन्नत इब्राहिमी है हमारी ये, और सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करने के लिए एक इवेंट मुनक्किद होते हैं और हम अपने आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। तो मेरा ये ख़्याल है कि हमें सुन्नत इब्राहिमी को सब लोगों को फॉलो करना चाहिए, इस पैगाम को आम करना चाहिए और मोहब्बतों के पैगाम को आम करना चाहिए। ईद का मौका है तो मेरा ख़्याल में गैर सियासी गुफ्तगू है, तो इसके अलावा जो चलें बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा पैगाम दिया, आला क़यादत से हमारी बात चल रही है। और यकीनी तौर पर मैं जाते जाते एक और सवाल पूछ लूँ कि सर मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से ये ईद उल अज़हा के मौके पर जो है ये इतनी डिफरेंट मैंने ख़िताब सुने भी हैं मुस्तफ़ा कमाल के, तो आजकल मैंने देखा कि ट्रेंड माशाल्लाह से थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये पार्टी के मंशूर में ही है इस तरह अमर बिल मारूफ़ को साथ लेकर चलना, या फिर ये सिर्फ जो है ईद उल अज़हा के मौके पर है? या नहीं, ईद उल अज़हा के मौके पर तो डिफरेंट मकामात पर मैंने सुने भी हैं, तो पार्टी का मंशूर ये इसमें शामिल है कि अमर बिल मारूफ़ जो साथ साथ लेकर चल रहे हैं, बड़ा अच्छा है और कुरान हमें हुक्म देता है, इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये साथ साथ दिन के जो है 24 घंटों के लिए है या फिर जो है कभी कभी है सर? लेकिन बात बिल्कुल साफ़ ये है कि पाक सरज़मीन पार्टी सियासत ही अमर बिल मारूफ़ की बुनियाद पर कर रही है। हमारा सियासत करने का मकसद ही यही है, और ये तमाम जो आज लोग इस शहर में जुड़ रहे हैं वो इसी मोहब्बत के पैगाम के नाते जुड़ रहे हैं। हमारा पैगाम ये है कि तमाम लोगों को इकट्ठा लेके चलें, और यही हमारी सुन्नत भी है, यही हमारा पैगाम भी है। ये हमारे चेयरमैन पाक सरज़मीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल का पैगाम है कि तमाम लोगों को मोहब्बत के साथ इकट्ठा लेके चलें, इस शहर को, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके चलें, भाईचारगी की तरफ लेके चलें। बहुत हमने आपस में लड़ लिया, बहुत इख्तलाफात कर लिए। मैं समझता हूँ कि मोहब्बत के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है, और यही हमारी सुन्नत और यही हमारी जो है ना वो हिदायत का ही हमारे लिए पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आला क़यादत मौजूद। उम्मीद बारी ताला है कि इसी तरह जो है अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर के साथ PSP रवां दवा रहे और पाकिस्तान के लिए जो है मुस्बत जो है इनका काम सामने आए। और आला क़यादत से आप सुन रहे थे, पैगामात भी लिए आपने, ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद भी वसूल की, और ना सिर्फ मुबारकबाद बल्कि
چند غیر سیاسی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی گئیں. آپ دیکھ رہے ہیں بقا نیوز. اپنے میزبان ارشد علی کو دیجیے گا اجازت. اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. کیمرہ مین امجد واریہ اور ارشد علی کو دیجیے گا اجازت. اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار ہوں، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے. حضور